I welcome you all in the next video tutorial of pharmacy practice. So dear all, in this video we are going to cover a simple concept of ADR, that is adverse drug reaction. So after watching this video you will be able to know about different type of ADR. So let's start. So we generally classified ADR into two categories. Number one is the predictable type and other one is the non-predictable type. And the predictable type include excessive pharmacological effect, side effects, toxic effect, secondary pharmacological effects, and also the drug withdrawal reactions. Whereas the non-predictable type includes idiosyncratic reaction, genetically determined toxicity, hypersensitivity reactions like anaphylactic shock, supersensitivity, photosensitivity, and intolerance. So let's do them one by one. First of all, the definition of ADR as per WHO. So as per WHO, adverse drug reactions are defined as any noxious, unwanted effect of the drug that occurs at doses given to human beings for prophylaxis, diagnosis or treatment. तो ADR किसी भी स्टेज पे आ सकते हैं. Maybe it might be at the time of prophylaxis or the treatment given, और the diagnosis के टाइम पे और तो treatment के टाइम पे भी आ सकते हैं. It may be arise at the therapeutic dose, ADR therapeutic dose पे भी आ सकते हैं और toxic और overdose पे भी ADR हो सकते हैं. There are different reasons for ADR, that is increase the availability of the potent drugs, the availability of drug without prescription. This is one of the reasons of ADR. The patients are taking drug on their own without any prescription. Polypharmacy means use of multiple drugs at the single time. Use of self-medication for the minor ailments. This is again one of the important reasons. The exposure of man to drug and chemicals via polluted environment. So there are classification types of ADR की बात करें तो predictable also known as type 1 और non immunologic. और अगर हम type 2 की बात करें, टाइप बी की बात करें तो टाइप बी के एग्जांपल्स हैं अनप्रिडिक्टेबल और इम्यूनोलॉजिक. तो देयर आर टू टाइप ऑफ एडीआर. फर्स्ट इज द इम्यूनोलॉजिक और नॉन इम्यूनोलॉजिक, जिसे हमने प्रिडिक्टेबल भी बोला है. तो दीज आर द एग्जांपल्स. हमने कंप्लीट कर लिए फ्लो चार्ट की फॉर्म में. फर्स्ट वन, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. एक बार फिर से देखिए फ्लो चार्ट. यस, वी हैव कंप्लीटेड दिस पॉइंट, प्रिडिक्टेबल और नॉन प्रिडिक्टेबल. तो फर्स्ट वन इज द एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. As you can see, it develops in all patients if excessive dose is given and results in excessive pharmacological effect. And generally seen in the cardioactive agents, CNS depressants, hypoglycemic hypotensive agents. Example के तौर पे समझते हैं. For example, at excessive dose of digoxin, it produces bradycardia. Simple example. अगर किसी ड्रग की डोज को एक्सेसिव किया जाएगा तो नेचुरल सी बात है एडीआर होना स्वाभाविक है. एग्जांपल दे रखा है कि एक्सेसिव डोज ऑफ डाइजॉक्सिन प्रोड्यूसेस ब्रेडिकार्डिया. मॉर्फिन की अगर एक्सेसिव डोज होगी इट प्रोड्यूसेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. Second type of ADR is the side effects. So side effects are some extension of the pharmacological effects which produced at therapeutic doses. तो एक therapeutic doses पे एक इंसान को side effects हो सकते हैं. It is a dose related and a minor in nature. वो minor होते हैं. ADR थोड़ा सा major आ गया, side effects एक minor nature का है. एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो कोडीन हैज कॉन्स्टिपेटिंग एज अ साइड इफेक्ट. तो कोडीन खाने से, जो कि एंटीटसिव ड्रग है, कॉन्स्टिपेशन कई बार पेशेंट्स में देखी गई. Sulfonylureas are found to decrease blood glucose level in patients. So these are the example of side effect. Third one is the toxic effects. तो toxic effects, अगर किसी ड्रग की ओवरडोज हो जाएगी तो नेचुरल सी बात है टॉक्सिसिटी होगी. तो the effect produced at the overdose or the prolonged use, उसमें prolonged use भी हो सकता है ड्रग का. कोई पेशेंट लंबे समय से कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं पैरासिटामोल, सिंपल नसेड है, लेकिन इट कॉजेज हेपेटिक नेक्रोसिस ऑल्सो. अगर कोई इंसान लगातार लंबे समय से पैरासिटामोल कंज्यूम कर रहा है तो इट माइट कॉज हेपेटिक नेक्रोसिस. और barbiturates causes coma. So these are the common example of toxic effect. Next is the secondary pharmacological effect. ड्रग का एक्शन जो प्राइमरी है वो ना होके कोई और इफेक्ट हो जाए. तो some of the drugs having other many pharmacological actions at commonly administered doses. The effect produced by the drug is different than the drug administered initially. बिल्कुल वो इफेक्ट अलग होगा. For the prevention or treatment means it is an indirect consequence of primary drug action. एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट रिसीविंग एंटीहिस्टामिनिक ड्रग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस इन द एलर्जिक स्किन रिएक्शन मे बिकम ड्रोजी. कई बार पेशेंट्स अगर एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कंज्यूम करते हैं, ज्यादातर H1 आती है इसमें, H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, तो उसमें ड्रोजीनेस देखी गई है. तो वो ड्रग का सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है. नेक्स्ट इज द रिबाउंड ड्रग विड्रॉल रिएक्शन.
कोई पेशेंट लंबे समय से कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा है और उसको एकदम से छोड़ दे तो विड्रॉल सिम्टम्स होना स्वाभाविक है। तो यूज ऑफ लॉन्ग टर्म ऑफ मेडिकेशन प्रोड्यूस टॉलरेंस एट सेलुलर लेवल एंड सडन विड्रॉल ऑफ सच मेडिकेशन गिव राइट टू एडीआर। एग्जांपल के तौर पे समझे तो सबसे कॉमन एग्जांपल आएंगे इसमें बार्बिट्रेट्स और नार्कोटिक्स। तो उनको एकदम से विड्रॉल करने से एक्सेसिव सिम्टम्स पेशेंट्स में देखे गए हैं। तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट्स लाइक बेंजोडाइजापीन, बार्बिट्रेट्स एंड अल्कोहल आफ्टर सडन विड्रॉल रिजल्ट्स इन कंफ्यूजन, delirium, tachycardia and convulsions. So I hope this is clear. Next one is the unpredictable or type B. First example, idiosyncratic reaction. What is this idiosyncrasy? It refers to inherent peculiarity of an individual and is described as an unusual or abnormal response to a drug. इतना याद रखिए आप. It is an unusual or abnormal response to a drug or highly exaggerated unusual और यूजुअल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय सम ड्रग्स विद यूजुअल डोजेस। बोलने का मतलब ये है कि वेरीज फ्रॉम जेनेटिक मेकअप। आपने कोई ड्रग कंज्यूम की और एक अनयूजुअल, एक बहुत ही अलग सा एडीआर आ गया, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया, तो आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जरूरी नहीं है कि हर इंसान को ड्रग कंज्यूम करने के बाद आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन हो, कई लोगों में हो भी सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टर्म फार्माकोजेनेटिक्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें तो administration of the analgesic drug to a patient with renal disease may induce tumor of kidney pelvis। अगर किसी इंसान को ऑलरेडी renal disease है और वो analgesic drug कंज्यूम कर रहा है बार बार, तो उसमें देखा गया है चांसेस है ट्यूमर ऑफ किडनी पेल्विस के। फॉर एग्जांपल बार्बिट्रेट प्रोड्यूसेस एक्साइटमेंट एंड मेंटल कंफ्यूजन इन पेशेंट्स। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, अनयूजुअल रिस्पांस हो रहा है। जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी पेशेंट के बॉडी में ही कोई जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी का मतलब है कि कोई जीन्स की कमी है या कई बार किसी एंजाइम की कमी है उसके जेनेटिक मेकअप में, उसकी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी उसमें एडीआर दिखेंगे। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन अकर इन द पेशेंट विद स्पेशल जीनोटाइप और जेनेटिक मेकअप। इसमें पेशेंट का जीनोटाइप स्पेशल होगा। एग्जांपल के तौर पे समझे, हेमोलिटिक एनीमिया कॉज्ड एक्सपोजर विद प्राइमोक्विन। अगर किसी इंसान को हेमोलिटिक एनीमिया है ऑलरेडी तो इट कॉज एक्सपोजर विद प्राइमोक्विन से वो इंक्रीज हो सकता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हेरिडिटरी डेफिशिएंसी ऑफ द प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेज आर अनेबल टू हाइड्रोलाइज द सक्सिनल कोलिन, thus it causes prolonged aponia. In case of plasma pseudocholinesterase deficient patient, अगर किसी पेशेंट के ब्लड में ऑलरेडी pseudocholinesterase deficient वो इंसान है, वो पेशेंट है, तो उसमें प्रोलॉन्ग एपोनिया के, एपोनिया मींस लैक ऑफ ब्रीदिंग के केसेस देखे गए हैं। नेक्स्ट एडीआर, दैट इज द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ये बिल्कुल सिंपल है, किसी भी ड्रग को कंज्यूम करने से अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। दिस इज वेरी सिंपल, ऐसा देखा गया है। इट जनरली एसोसिएटेड विद द पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन और अदर एंटीबायोटिक रिलेटेड कंपाउंड्स। एनाफिलैक्टिक शॉक क्या है? इट इज द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ दिस, इसी का ही एडवांस वर्जन हाइपर सेंसिटिविटी का, एनाफिलैक्टिक शॉक। एकदम से कोई अपने मेडिकेशन ली और एकदम से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ज्यादा सीरियस हो गया। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज दैट बिलोंग्स टू आईजीई क्लास। इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बनेंगे जो कि आईजीई क्लास को बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, डेक्स्ट्रोन, एनेस्थेटिक एंड आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस एनाफिलैक्सिस रिएक्शन इन सम केसेस। और क्यूनिटीन कंज्यूम करने से या थायाजाइड डाइजेशन कंज्यूम करने से कई पेशेंट्स में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन भी देखी गई है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मींस लो प्लेटलेट लेवल। सुपर सेंसिटिविटी, नेक्स्ट वन, what is this super sensitivity? It is demonstrated that increase in the responsiveness to a drug that produces either from denervation or following administration of the drug। किसी भी ड्रग का ज्यादा सुपर सेंसिटिविटी मतलब बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव हो गया पेशेंट उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए, अगर उसको मान लीजिए वो प्रोलॉन्ग कर रहा है लंबे समय के लिए, तो दैट इज कम अंडर द कंसेप्ट ऑफ सुपर सेंसिटिविटी। बेसिकली है क्या? इंक्रीज इन द रिस्पॉन्सिवनेस टू अ ड्रग, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस उसका इंक्रीज हो जाएगा ड्रग के प्रति। फोटो सेंसिटिविटी, आपको पता ही है, फोटो मींस लाइट, तो सम ऑफ द ड्रग्स आर फोटो सेंसिटिव, तो उसकी वजह से भी एडीआर रिपोर्ट हो सकते हैं। इसमें दो तरह के टॉपिक्स आएंगे, फोटोटॉक्सिक और फोटो बायोलॉजिकल और फोटो एलर्जिक। इन विच फोटोटॉक्सिक क्या है? इन विच द रिएक्शन अकर्स ड्यू टू ड्रग एक्युमुलेशन इन द स्किन which absorb light upon exposure to light results in the photochemical reaction। इसमें स्किन एलर्जीज वगैरह हो सकती हैं। और फोटो एलर्जिक रिएक्शंस एज नेम इंडिकेट इन दिस रिएक्शन टू कॉज टिश्यू डैमेज लाइक एर्थीमिया और एडिमा। इंटॉलरेंस क्या है? अब ड्रग कंज्यूम कर रहे हो लेकिन आपकी बॉडी में सैचुरेशन होगी रिसेप्टर में, इंटॉलरेंस आ गई। इट इज ऑपोजिट ऑफ टॉलरेंस। इंटॉलरेंस ऑपोजिट है टॉलरेंस का।
It is appearance of ADR at a therapeutic dose level. Some of the examples in chloroquine cause vomiting, abdominal pain. So these are the examples. Few doses of carbamazepine cause ataxia or defective movement or gait. So these are the example of the intolerance. So I hope this is clear. In the last, I acknowledge all the sources I used to frame this video. So this is for educational purposes only. There is no commercialization involved. And last, so again, let's see the ADR प्रिडिक्टेबल और नॉन प्रिडिक्टेबल. तो एक और डिफरेंस हमने स्किप किया, अब करते हैं प्रिडिक्टेबल और नॉन प्रिडिक्टेबल में कौन सा ज्यादा सीरियस है. जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, let's see first the predictable type. So in this type, the qualitative response are normal, but the quantitative response are abnormal. And the responses in predictable reaction are less serious, and generally dose dependent reaction are there. तो अनप्रिडिक्टेबल टाइप में उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो ज्यादा सीरियस होने वाला है. The reaction generally due to presence of some patient peculiarities, जैसे हमने देखा कि पेशेंट के अंदर कोई हेरिडिटी किसी एंजाइम की कमी हो गई जिसकी वजह से उसको एडीआर हो रहा है. For example, allergy and idiosyncratic reaction. It is very less common and dose independent. वो डोज पे डिपेंड नहीं करता है, वो पेशेंट के अंदर हो सकता है, कोई और भी रीजन हो सकता है. And it is the most serious type. So I hope this is clear. So thank you all for a valuable time.